Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. Today we are going to continue with employee stock option plan. In today's class, we are going to complete this chapter by solving 2-3 problems which are left to be done. So let us start by first solving problem 5. Yes, Facebook Limited granted 2000 options on 1st April 2019 at rupees 60 each under employee stock option scheme. So 2000 options were granted and the grant date is 1st April 2019. Exercise price is rupees 60 per option. The face value of each option is rupees 10 and the market price at that time was 140. So market price is 140, यानी कंपनी अगर अपना शेयर्स पब्लिक में इशू करे तो 140 में इशू कर सकता है, बट यही शेयर्स कंपनी ई शॉप के थ्रू अपने एम्प्लॉइज को दे रहा है एट रुपीज 60 per share. So what is the intrinsic value of the option? It is 140, that is the market value, minus 60, which is the exercise price. So 140 minus 60 market value minus exercise price is equal to rupees 80 per option. The maximum exercise period and the vesting period were 1 year and 2.5 years. So maximum exercise period is 1 year and the vesting period is 2.5 years. यानी 2.5 years के लिए we need to create provision. यानी 2.5 years के लिए we need to create provision. On 1st April 2021, on 1st April 2022 होगा, on 1st April 2022 होगा, not 21. On 1st April 2022, 1500 options were exercised. यानी एक्सरसाइज पीरियड में 1500 options were exercised. Remaining 500 options lapsed at the end of the exercise period. What is exercise period? Exercise period is 1 year. After 1 year, 500 vested options lapsed at the end of the exercise period. एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद ये 500 बाकी ऑप्शंस लैप्स हो गए. शो journal entries in the books of the company assuming accounting year ends on 31st March every year. So if I summarize the information given in the question, we have 200 options granted on 1st April 2019. Exercise price is rupees 60, market price is 140, intrinsic value is rupees 80, vesting period is 2.5 years, exercise period is 1 year, 1500 options were exercised and 500 options were lapsed at the end of the exercise period. We need to pass entries. When is the first year ending on? It is on 31st March 2020. 31st March 2020. So 31st March 2020 ko we need to make provision. Then when is the second year ending on? Second year of the vesting period ending on? Second year of the vesting period ending on 31st March 2021. 31st March 2021. Vesting period is 2.5 years. So when is the remaining 6 months ending on? It is ending on 30th September 2021. 30th September 2021. So 30th September 2021 को वेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है. इसके 1 साल तक, इसके बाद 1 साल तक, इसके बाद 1 साल तक
एक्सरसाइज पीरियड चलेगा और इसी बीच 1 अप्रैल 2022 को 1500 options were exercised, and after the exercise period ends on, when is exercise period ending on? 30th September 2022. 30th September 2022 को एक्सरसाइज पीरियड एंड हो रहा है, राइट? उसके बाद 500 ऑप्शंस वर lapsed at the end of the exercise period. Clear? Okay. So this is the data. So 2.5 years is vesting period. We need to create provision during the vesting period, right? करते हैं. When is the first year ending on? 30th, 31st March 2020. 31st March 2020. प्रोविजन क्रिएट करेंगे. प्रोविजन क्रिएट करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? प्रोविजन क्रिएट करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग. अब प्रोविजन कितना से क्रिएट करेंगे बताना जरा. फर्स्ट ईयर एंड हुआ है, वेस्टिंग पीरियड 2.5 years का है, फर्स्ट ईयर एंड हुआ है. सो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर के एंड तक, हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड 2000 options are expected to be vested. 2000 options are expected to be vested. Expected, the word is expected to be vested. 2000 options are expected to be vested, right? What is the intrinsic value per option? What is the intrinsic value per option? It is 80. How many years have expired out of 2.5 years? First year के end तक how many years have expired out of 2.5 years? 1 out of 2.5 years. 1 out of 2.5 years, यानी फर्स्ट ईयर के एंड तक इन टोटल में इतना का प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए, जिसमें से कितना का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है? कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं हुआ है. सो फर्स्ट ईयर के एंड तक 2000 into 80 into 1/2.5 तक जितना प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए. 64,000. देन एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट ईयर एंड, दैट इज एट द एंड ऑफ second year of the vesting period, at the end of second year of the vesting period, at the end of second year of the vesting period, which is on 31st March 2021, अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है. अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है. प्रोविजन क्रिएट करने के लिए अपने क्या एंट्री पास करेंगे? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग. कितना का प्रोविजन क्रिएट करना है? how many options are expected to be vested by the end of 2000
31st March 2001, right? 2021, sorry. How many options are expected to be vested by the end of the second year? It is 2000. 2000 options are expected to be vested by the end of the second year. What is the intrinsic value per option? Intrinsic value per option is rupees 80. How many years have expired out of 2.5 years? 2 years have expired out of 2.5 years. यानी सेकेंड ईयर के एंड तक इन टोटल में 2000 इंटू 80 इंटू 2/2.5 तक प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए, यानी इन टोटल में इतना प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए, जिसमें से कितना का प्रोविजन क्रिएट हो गया है? फर्स्ट ईयर में 64,000 का प्रोविजन क्रिएट हो गया है। तो कितना प्रोविजन और क्रिएट करना बाकी है? 64,000 और क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ईयर में 64,000 क्रिएट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में 64,000 और क्रिएट करना है। फिर अपने क्या करेंगे? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। Two years out of 2.5 years of the vesting period has expired. 2 years out of 2.5 years has expired. The remaining 6 months कब एंड हो रहा है? 30th September 2021. Remaining 6 months कब एंड हो रहा है? 30th September 2021. So 30th September 2021 को भी 6 months के लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे। How many options are expected to be vested? 2000 options. What is the intrinsic value per option? 80. How many years have expired? 2.5 out of 2.5. कितना का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है? सो इन टोटल में 2.5 years के एंड तक, इन टोटल में 2.5 years के एंड तक, दैट इज द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, अपने को इन टोटल 2000 इंटू 80 इंटू 2.5 जितना प्रोविजन क्रिएट करना है। 2000 into 80 into 2.5 by 2.5. 2000 into 80 into 2000 into 80 into 2.5 by 2.5. इन टोटल में इतना प्रोविजन क्रिएट करना है, जिसमें से कितना प्रोविजन अपने क्रिएट कर लिए? 64,000 फर्स्ट ईयर में, 64,000 सेकेंड ईयर में। तो और कितना प्रोविजन क्रिएट करना बाकी है? 32,000। टू एंड हाफ ईयर्स तक का प्रोविजन क्रिएट हो गया। 2.5 years का प्रोविजन क्रिएट हो गया। देन इसके बाद 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड है। एक्सरसाइज पीरियड कब एंड हो रहा है? 30th September 2022। उसी बीच 1st April, उसी बीच 1st April 2021 को 1500 options were exercised. 1500 options were exercised. सर ये तो 22 होगा ना आप बोले? हाँ, 31st April 2022, sorry. 1500 options are exercised. How
How is option exercised? By paying the exercise price, right? What is exercise price? Rupees 60. So एक्सरसाइज प्राइस अपने रिसीव करेंगे और इसको ईसो अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. कितना? 1500 ऑप्शंस इनटू 60. ठीक है. ओके. देन इसके बाद अपने शेयर्स अलॉट करेंगे. शेयर्स अलॉट करेंगे ईसो अकाउंट में से. अमाउंट को निकालकर शेयर्स अलॉट करेंगे. ईसो अकाउंट में कितना क्रेडिट बैलेंस चल रहा है? 80 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाले पर ऑप्शन, एंड 60 रुपीज अपने एम्प्लॉइज लोग से लिए पर ऑप्शन. 60 रुपीज पर ऑप्शन एम्प्लॉइज लोगों से लिए, यानी ईसो अकाउंट में 140 का क्रेडिट बैलेंस है. ये 140 को अपने यूटिलाइज करेंगे शेयर्स अलॉट करने के लिए. शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा मैक्सिमम फेस वैल्यू जितना से. बैलेंस अमाउंट अपने एसपीआर अकाउंट में डाल देंगे. $1500 into 130. ठीक है. राइट. 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गया. 500 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ. वो 500 ऑप्शंस क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज पीरियड के एंड में लैप्स हो जाएगा. एक्सरसाइज पीरियड कब एंड हो रहा है? 30 सितंबर 2022 को, यानी 30 सितंबर 2022 तक एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो लैप्स कब होगा? 1 अक्टूबर 2022. जब ऑप्शंस लैप्स होगा तो ऑप्शंस के लिए जो प्रोविजन क्रिएट किए थे वो बेकार हो गया. तो प्रोविजन को अपने क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे. प्रोविजन को अपने क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे. ईसो अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू जनरल रिजर्व. $500 ऑप्शंस लैप्स हो रहे हैं. कितना प्रोविजन क्रिएट किए थे? 80 के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट हुआ था. 500 इंटू 80 के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट हुआ था. तो 500 इंटू 80, 40,000 अपने प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे. क्लियर? इसी का कुछ दिखाना है आपको? अपने यहां से स्टार्ट किए थे. ये फर्स्ट ईयर का प्रोविजन है, ये सेकेंड ईयर का प्रोविजन है, ये 6 महीना का प्रोविजन है, ये एक्सरसाइज का एंट्री है और ये लैप्स का एंट्री है. किसी को कुछ भी दिखाना है प्लीज लेट मी नो. आगे बढ़े.
प्रॉब्लम 6, आ जाओ। आकाश लिमिटेड granted on 1st April 2019 2,000 shares of rupees 10 each to its employees at rupees 60 each. So 2,000 is the number of options. Grant date is 1st April 2019. Face value is rupees 10. Exercise price is rupees 60 per option. The market price on that date was 150 per share. 150 per share is the market price per option. Yani what is the intrinsic value per option? It is 150 minus 60 is equal to 90. The vesting period was 3 years and the exercise period was 6 months. Okay. यानी 3 साल के लिए अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है। पहला साल कब एंड होगा वेस्टिंग पीरियड का? 31 मार्च 2020। सेकेंड ईयर कब एंड होगा वेस्टिंग पीरियड का? 31 मार्च 2021। थर्ड ईयर कब एंड होगा वेस्टिंग पीरियड का? 31 मार्च 2022। ठीक है। सो 31 मार्च 2022, 31 मार्च 31 मार्च 2022 को 3 साल का वेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है। ध्यान से सुनना, options for 200 shares were elapsed on 14th Jan 2021. 14th Jan 2021 यानी सेकेंड ईयर खत्म होने से पहले, वेस्टिंग पीरियड का सेकेंड ईयर खत्म होने से पहले 200 ऑप्शंस लैप्स कर गया। वेस्टिंग पीरियड का पहला साल कब एंड होगा? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020। सेकेंड ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2021। थर्ड ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2022। सो सेकेंड ईयर एंड होने से पहले यानी 31 मार्च 2021 से पहले 200 ऑप्शंस लैप्स हो गए। 200 ऑप्शंस लैप्स होने का रीजन क्या है? अगर वेस्टिंग पीरियड एंड होने से पहले ऑप्शंस लैप्स हो जा रहे हैं यानी जरूर एम्प्लॉइज ने परफॉर्मेंस पीरियड तक सर्व नहीं किया होगा। बिकॉज ऑप्शंस वेस्ट होने का कंडीशन क्या था कि एम्प्लॉइज लोग 3 साल का परफॉर्मेंस पीरियड सर्व करेंगे। तो एम्प्लॉइज लोगों ने जरूर 3 साल का परफॉर्मेंस पीरियड सर्व नहीं किया होगा, तभी जाकर ये 200 ऑप्शंस 14th Jan 2021 को यानी दूसरे ही साल लैप्स हो जाता है। These are unvested options which are becoming lapse. ये ऑप्शंस वेस्ट होने से पहले ही लैप्स हो जा रहा है, तो वेस्ट हुआ ही नहीं। वेस्ट कब होता है? जब परफॉर्मेंस पीरियड सर्व करता है। तो अगर एम्प्लॉयज ने परफॉर्मेंस पीरियड सर्व नहीं किया है तो ये ऑप्शंस लैप्स हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर एंड होने से पहले ही 200 ऑप्शंस लैप्स हो जा रहा है। ठीक है। All the options were exercised on 30th September 2022. वेस्टिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2022 और उसके बाद 6 महीने का एक्सरसाइज पीरियड है। उसके बाद 6 महीने का एक्सरसाइज पीरियड है। वेस्टिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2022। उसके बाद 6 महीने का एक्सरसाइज पीरियड है। ये 6 महीने का एक्सरसाइज पीरियड कब एंड होगा? 30th सितंबर 2022। सो 30th सितंबर 2022 को 100 options were lapsed. All the options were exercised on 30th September 2022 except for 100 shares. सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए, सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए सिवाय 100 शेयर्स के।
अच्छा, टोटल में कितना ऑप्शंस है बोलो? टोटल में 2000 ऑप्शंस है। टोटल में 2000 ऑप्शंस है, जिसमें से 200 ऑप्शंस 14 जैन 2021 यानी दूसरे ही साल लैप्स हो जाता है, वेस्ट होने से पहले लैप्स हो जाता है। जरूर एम्प्लॉयज लोगों ने छोड़कर चले गए होंगे, तो ये ऑप्शंस वेस्ट होने से पहले लैप्स हो गया। तो इसके बाद कितना ऑप्शंस बचा? 1800 ऑप्शंस बचा। ये 1800 ऑप्शंस में से सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाते हैं, सिवाय 100 ऑप्शंस को छोड़कर। यानी 1700 ऑप्शंस, 1700 ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाते हैं ऑन 30th सितंबर 2022, सिवाय 100 शेयर्स को छोड़कर। इसी का क्लियर? यानी ये 100 शेयर्स का जो ऑप्शन है वो वेस्ट होने के बाद लैप्स हो रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहला साल कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2020। प्रोविजन क्रिएट करेंगे। प्रोविजन क्रिएट करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है। हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर के एंड तक हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? 2000 या 1800? 2000 या 1800? ध्यान से देखो, ये जो 200 ऑप्शंस लैप्स हो रहे हैं, ये सेकेंड ईयर एंड होने से पहले लैप्स हो रहे हैं। यानी फर्स्ट ईयर के एंड में 2000 ऑप्शंस वर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड। ये 200 ऑप्शंस जो लैप्स हो रहे हैं, ये सेकेंड ईयर एंड होने से पहले लैप्स हो रहे हैं। यानी फर्स्ट ईयर के एंड में सारे ऑप्शंस वर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड, 2000 options were expected to be wasted. So 2000 options were expected to be wasted. What is the intrinsic value per option? It is rupees. Tell me. It is rupees 90. 150 minus 60 is equal to 90. How many years have expired out of 3 years? 1 year have expired out of 3 years. 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो 3 साल में प्रोविजन क्रिएट करना है। 3 में से कितना साल एक्सपायर हो गया? 1 साल एक्सपायर हो गया। सो फर्स्ट ईयर के एंड तक इन टोटल में 2000 इंटू 60 इंटू 1/3 जितना प्रोविजन क्रिएट करना है, जिसमें से कितना का प्रोविजन क्रिएट कर चुके हैं, कुछ भी प्रोविजन क्रिएट नहीं किए, तो कितना का प्रोविजन क्रिएट करना होगा? 40,000। 40,000 ना, 2000 इंटू, सॉरी 90 होगा ये। 2000 इंटू 90 इंटू 1/3, 60,000। 60,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। फिर अपने क्या करेंगे?
एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को राइट ऑफ कर देंगे। देन सेकेंड ईयर में आ जाओ। सेकेंड ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2021। सेकेंड ईयर को भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? अब इसमें बताओ, सेकेंड ईयर एंड होने से पहले, सेकेंड ईयर एंड होने से पहले 14 जनवरी 2021 को 200 ऑप्शंस लैप्स हो जाता है। वेस्ट होने से पहले लैप्स हो जाता है। इसका रीजन क्या है? एम्प्लॉयज लोग काम छोड़कर चले गए। एम्प्लॉयज लोग काम छोड़कर चले गए, परफॉर्मेंस पीरियड सर्व नहीं किए, तो ऑप्शंस वेस्ट नहीं हुआ, ऑप्शंस लैप्स हो गया। तो सेकेंड ईयर एंड होने से पहले 200 ऑप्शंस लैप्स हो जाता है। सो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड तक, सेकेंड ईयर के एंड तक हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? 1800 options are expected to be vested. What is the intrinsic value per option? 90 rupees is the intrinsic value per option. कितना साल खत्म हो गया? सेकेंड ईयर के एंड तक कितना साल खत्म हो गया? 2 साल खत्म हो गया आउट ऑफ 3। 2 साल खत्म हो गया आउट ऑफ 3, यानी सेकेंड ईयर के एंड तक इन टोटल 1800 इंटू 90 इंटू 2/3, 1800 इंटू 90 इंटू 2/3 तक प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए। 1800 इंटू 90 इंटू 2/3 इन टोटल में प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए, जिसमें से कितना का प्रोविजन क्रिएट हो गया? फर्स्ट ईयर में 60,000 का प्रोविजन क्रिएट हो गया। तो और कितना प्रोविजन क्रिएट करना बाकी है? और कितना प्रोविजन क्रिएट करना बाकी है? 48,000 जितना प्रोविजन क्रिएट करना बाकी है। तो और कितना का प्रोविजन क्रिएट करे वो निकालो। इसी का यहां तक समझ में आया बेटा? प्लीज यस नो में जवाब दो। कोई भी डाउट नहीं है? यहां तक क्लियर आपको? चलो, थैंक यू सो मच। फिर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को राइट ऑफ कर देंगे। थर्ड ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 को भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे। प्रोविजन क्रिएट करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। थर्ड ईयर के एंड तक हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? 1800। 1800 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड। बाद में जो 100 ऑप्शंस लैप्स हुआ है, बाद में जो 100 ऑप्शंस लैप्स हुआ है, वो एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद लैप्स हुआ है। बाद में जो 100 ऑप्शंस लैप्स हुआ है, वो एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद लैप्स हुआ है। बाद में जो 100 ऑप्शंस लैप्स हुआ है, वो एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद लैप्स हुआ है। अभी वेस्टिंग पीरियड चल रहा है। वेस्टिंग पीरियड का आखिरी और तीसरा साल, तीसरा और आखिरी साल चल रहा है। तीसरा और आखिरी साल चल रहा है वेस्टिंग पीरियड। अभी वेस्टिंग पीरियड का तीसरा आखिरी साल चल रहा है। तो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? 1800 ऑप्शंस। 1800 ऑप्शंस, वही 1800 ऑप्शंस। 1800 में से बाद में 1700 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ एंड 100 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ। बट वेस्टिंग पीरियड के एंड में
1800 ऑप्शंस आर वेस्टेड, यानी थर्ड ईयर में 1800 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड. What is the intrinsic value per option? 90. How many years have expired? 3 out of 3. यानी थर्ड ईयर के एंड तक इन टोटल में 1800 इंटू 90 इंटू 3/3 जितना प्रोविजन क्रिएट कर लेना है. थर्ड ईयर के एंड तक इन टोटल में, यानी थर्ड ईयर के एंड तक 1800 इंटू 90 इंटू 3/3 जितना प्रोविजन क्रिएट कर लेना है, जिसमें से कितना का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है? 60,000 का by the end of first year and 48,000 का by the end of second year. तो और कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? और कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? 54,000. तो थर्ड ईयर के एंड तक इन टोटल में 1800 इंटू 90 इंटू 3/3 जितना प्रोविजन क्रिएट कर लेना है, जिसमें से 60,000 का प्रोविजन फर्स्ट ईयर में एंड 48,000 का प्रोविजन सेकेंड ईयर में क्रिएट हो चुका है. तो और कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? 54,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है. फिर अपने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करेंगे. 54,000 54,000. राइट. तो इस तरीके से 1800 ऑप्शंस के लिए, इस तरीके से 1800 ऑप्शंस के लिए 90 रुपीज पर ऑप्शन जितना प्रोविजन क्रिएट हो चुका है. इस तरीके से 1800 ऑप्शंस के लिए 90 रुपीज पर ऑप्शन जितना प्रोविजन क्रिएट हो चुका है. इस तरीके से 1800 ऑप्शंस के लिए 90 रुपीज पर ऑप्शन जितना प्रोविजन क्रिएट हो चुका है. यानी ईसो अकाउंट में 1800 ऑप्शंस के लिए 90 रुपीज पर ऑप्शन जितना क्रेडिट बैलेंस है. अब नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन का एंट्री पास करेंगे. सारे के सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए सिवाय 100 को छोड़कर. कब एक्सरसाइज हुए? 30th सितंबर 2022. 6 महीना का एक्सरसाइज पीरियड था. 6 महीना का एक्सरसाइज पीरियड था. तो 6 महीना कब एंड हो रहा है? 30th सितंबर 2022. 30th सितंबर 2022 को 1700 ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गया. 1800 में से सारे ऑप्शंस हो गए सिवाय 100 को छोड़कर. तो 1700 ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गया. एक्सरसाइज कैसे होता है? एक्सरसाइज प्राइस पे करके होता है. एक्सरसाइज प्राइस कितना है? एक्सरसाइज प्राइस इज ₹60 पर ऑप्शन. ₹60 पर ऑप्शन. तो 1700 ऑप्शंस पर अपने को 60 रुपीज करके रिसीव हुआ है. तो अपने बैंक में 1700 इंटू 60
रिसीव करेंगे 1,02,000, इसको ईसो अकाउंट में डाल देंगे। तो ईसो अकाउंट में 60 रुपीज और क्रेडिट हो गया। पहले से कितना का प्रोविजन क्रिएट करके रखे हुए, 90 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट करके रखे हुए पर ऑप्शन, और इसमें कितना ऐड हो गया, 60 रुपीज और ऐड हो गया। सो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150। 150 का क्रेडिट बैलेंस है। इसको अपने यूज करेंगे इक्विटी शेयर्स अलॉट करने के लिए। किसी का क्लियर यहां तक? यस, नो? कितना ऑप्शंस लैप्स हो जा रहे हैं? 100 ऑप्शंस लैप्स हो जा रहे हैं। तो उन 100 ऑप्शंस के लिए अपने क्या करेंगे, प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। प्रोविजन कितना से क्रिएट किए थे, प्रोविजन कितना का क्रिएट किए थे, 90 रुपीज पर ऑप्शन का क्रिएट किए थे। सो 100 ऑप्शंस इनटू 90, 9,000। प्रोविजन 90 के हिसाब से क्रिएट किए थे, तो 100 इंटू 90, 9,000। क्लियर? आगे बढ़े। देखो स्क्रीन में एक और सम दिखाई दे रहा है, इलस्ट्रेशन 5। जो 6 इलस्ट्रेशंस मैंने आप लोग को दिया था पीडीएफ में, राइट, वो सॉल्व हो गया है। अब इलस्ट्रेशन 5 देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन 5 दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी टेकन एज अ मास्टर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन बी टेकन एज अ मास्टर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। P Limited granted options for 8,000 equity shares of nominal value of ₹10। 8,000 ऑप्शंस ग्रांट किए, फेस वैल्यू कितना है, ₹10 पर शेयर। ऑन 1 October 2000, on 1 October 2000, which is the grant date, at ₹80. What is 80? 80 is the exercise price when the market price was ₹170. So market price was 170, exercise price is 80. What is the intrinsic value per option? 90. The vesting period is 4.5 years. 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शंस। अनवेस्टेड मतलब वेस्टिंग पीरियड एंड होने से पहले, अनवेस्टेड मतलब वेस्टिंग पीरियड एंड होने से पहले
अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड, दे बिकम लैप्स्ड। अगर ऑप्शंस वेस्ट होने से पहले लैप्स करता है, इसका मतलब एम्प्लॉयज लोग कंपनी को छोड़कर चले गए, तभी उनके हक का ऑप्शंस लैप्स हो जा रहा है। बिकॉज ऑप्शंस वेस्ट होने के लिए एम्प्लॉयज को कंपनी में परफॉर्मेंस देना है 4.5 साल का। अगर 4.5 साल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, 4.5 साल खत्म होने से पहले एम्प्लॉयज लोग अगर कंपनी को छोड़ देते हैं तो उनका ऑप्शंस लैप्स हो जाता है। तो वैसे ही 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 1 दिसंबर 2002। ठीक है, तो बाकी कितना ऑप्शंस बचा? 4,000 ऑप्शंस। टोटल में 8,000 ऑप्शंस ग्रांट किए थे। 4,000 ऑप्शंस अनवेस्ट होकर लैप्स हो जाता है, तो कितना बचा? 4,000 ऑप्शंस। 4,000 ऑप्शंस बचा, जिसमें से 3,000 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th September 2005, वर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th September 2005। यानी बाकी 4,000 ऑप्शंस में से 3,000 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th September 2005, and 1,000 vested options lapsed at the end of the exercise period। बाकी 1,000 ऑप्शंस जो वेस्ट हो चुका था, ऑप्शंस है ना, बाकी 1,000 ऑप्शंस जो वेस्ट हो चुका था, दे लैप्स्ड एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। मतलब बाकी 1,000 ऑप्शंस जो वेस्ट हो चुके थे वो एक्सरसाइज नहीं हुए। ऑप्शंस है, राइट है, एम्प्लॉयज चाहे तो एक्सरसाइज करेंगे, चाहे तो एक्सरसाइज ना करें। तो टोटल में 4,000 ऑप्शंस वेस्ट हुआ था, यानी 4,000 ऑप्शंस के लिए एम्प्लॉयज लोगों ने 4.5 साल कंप्लीट किया था कंपनी में। तो 4,000 ऑप्शंस वेस्ट हुआ था, जिसमें से 3,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ, एंड बाकी 1,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ, वो वेस्ट होकर लैप्स हो गया। पास जर्नल एंट्रीज फॉर अबव ट्रांजैक्शंस। आई बात समझ में? अच्छा, ग्रांट डेट कब है? ग्रांट डेट कब का है? 1 अक्टूबर 2000 का है। ग्रांट डेट 1 अक्टूबर 2000 का है। ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च। ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2001। ग्रांट डेट कब का है? 1 अक्टूबर 2000 का। ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2001। ये जो पहला ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2001 को, इसमें वेस्टिंग पीरियड का कितना टाइम एक्सपायर हो रहा है, ये बताओ। पहला ईयर एंड कब आएगा? ग्रांट डेट कब है? 1 अक्टूबर 2000। इसके बाद पहला ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2001। तो 31 मार्च 2001 को कितना टाइम एक्सपायर हो रहा है, इसी का बताओ। ग्रांट डेट कब है? 1 अक्टूबर 2000। ग्रांट डेट के बाद पहला ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2001 को। सो 31 मार्च 2001 को वेस्टिंग पीरियड का कितना टाइम एक्सपायर हो रहा है? 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 31 मार्च 2001 तक कितना साल एक्सपायर हो रहा है? 6 मंथ्स एक्सपायर हो रहा है। 6 मंथ्स एक्सपायर हो रहा है, यानी 31 मार्च 2001 को 6 मंथ्स एक्सपायर हो रहा है। 31 मार्च 2002 को कितना साल एक्सपायर हो रहा है, इसी का बोलो। 31 मार्च 2002 को कितना साल एक्सपायर हो रहा है इन टोटल? इन टोटल 1.5 साल। 1 ईयर 6 मंथ्स। ठीक है, 31 मार्च 2002 को 1.5 साल एक्सपायर हो रहा है। देन 31 मार्च 2003 को कितना साल एक्सपायर हो रहा है? कितना टाइम एक्सपायर हो रहा है? 2.5 years।
31 मार्च 2004 को कितना साल एक्सपायर हो रहा है? 3.5 years. एंड 31 मार्च 2005 को कितना साल एक्सपायर हो रहा है? 4.5 years. 4.5 years. समझ में आ रहा है? यस नो? ठीक है, तो पहला 6 महीना कब एक्सपायर हो रहा है? 31 मार्च। 31 मार्च 2001 को 6 months एक्सपायर हो रहा है। 31 मार्च 2002 को 1.5 years एक्सपायर हो रहा है। 31 मार्च 2003 को 2.5 years एक्सपायर हो रहा है। एंड 31 मार्च 2003 से पहले, 31 मार्च 2003 से पहले 1 दिसंबर 2002 को 4000 ऑप्शंस अनवेस्ट होकर लैप्स हो जाता है। आई बात समझ में? 2.5 साल खत्म होने से पहले, 31 मार्च 2003 से पहले 1 दिसंबर 2002 को 4000 ऑप्शंस अनवेस्ट होकर लैप्स हो जाता है। ये 2.5 साल खत्म होने से पहले हो रहा है। पहले 1.5 साल में कोई दिक्कत नहीं है। 8,000 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड, बट 2.5 साल खत्म होने से पहले, 2.5 साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2002 को, 31 मार्च 2003 को, 31 मार्च 2003 को, 31 मार्च 2003 से पहले 1 दिसंबर 2002 को 4000 ऑप्शंस अनवेस्ट होकर लैप्स हो जाता है। तो 31 मार्च 2003 onwards, 31 March 2003 onwards, how many options are expected to be vested? 4,000 options are expected to be vested. 4,000 options are expected to be vested. Then 31 March 2004 को, 31 March 2004 को, 31 March 2004 को, how many options are expected to be vested? 4,000. 31 March 2005 को, how many options are expected to be vested? 4,000. सेम। समझ में आ रहा है? 31 मार्च 2005 तक अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है। उसके बाद क्या हो रहा है? बिकॉज 31 मार्च 2005 को 31 मार्च 2005 को 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर होगा। फिर उसके बाद 30 सितंबर 2005 को 3,000 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड एंड बाकी 1,000 ऑप्शंस वर लैप्स्ड। तो ये जो बाकी 1,000 ऑप्शंस लैप्स हो रहे हैं, ये वेस्ट होने के बाद लैप्स हो रहे हैं। तो इसके लिए मेरे को प्रोविजन रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ग्रांड डेट के बाद पहला ईयर एंड डेट कब है? 31 मार्च 2001। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। फटाफट बताओ, 31 मार्च 2001 के एंड तक हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? 8,000। 8,000। What is the intrinsic value per option? 90। दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 90 देख लो। क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है ना। फेयर वैल्यू पर ऑप्शन इज ₹90। मार्केट प्राइस कितना है? 170। एक्साइज प्राइस कितना है? 80। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 90। हाउ मच टाइम हैज एक्सपायर्ड? हाफ ईयर हैज एक्सपायर्ड, 6 महीना हैज एक्सपायर्ड,
आउट ऑफ हाउ मेनी इयर्स? आउट ऑफ 4.5 साल, आउट ऑफ 4.5 साल। यानी 31 मार्च 2001 के एंड तक इन टोटल में अपने को 8,000 इंटू 90 इंटू 0.5 बाय 4.5 जितना प्रोविजन क्रिएट कर लेना है। इससे पहले क्या कुछ भी प्रोविजन क्रिएट हुआ है? आंसर इज नो। तो 80,000 का प्रोविजन अपने को क्रिएट कर लेना है। देन नेक्स्ट ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2002 को। अच्छा, इससे पहले 31 मार्च 2001 को अपने एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ जरूर कर देंगे। देन ये बताओ 31 मार्च 2002 के एंड तक हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? 8,000। 8,000 options are expected to be vested. What is the intrinsic value per option? 90. How many years have expired? 1.5 out of 4.5. यानी 31 मार्च 2002 के एंड तक इन टोटल इतना का प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए। 8,000 इंटू 90 इंटू 1.5 आउट ऑफ 4.5, जिसमें से कितना का प्रोविजन क्रिएट हो गया है? बोलो कितना का प्रोविजन क्रिएट हुआ है? 80,000 का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है। तो और कितना का प्रोविजन क्रिएट करना बाकी है? निकाल लो। 1,60,000। फिर इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को। नाउ नेक्स्ट ध्यान से सुनना। इसके बाद 1 दिसंबर 2002 को 4,000 ऑप्शंस अनवेस्ट होके लैप्स हो गया। एम्प्लॉयज लोग कंपनी छोड़कर चले गए। इसके बाद ईयर एंड कौन सा आ रहा है? 31 मार्च 2003 को। तो 31 मार्च 2003 को हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? 4,000। बिकॉज 1 दिसंबर 2002 को 4,000 ऑप्शंस अनवेस्ट होके लैप्स हो गया। एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर चले गए। तो 31 मार्च 2003 को हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? 4,000. What is the intrinsic value per option? 90. How many years have expired by the end of 31st March 2003? 2.5 years out of 4.5. 2.5 years out of 4.5. यानी 31 मार्च 2003 के एंड तक इन टोटल 4,000 इंटू 90 इंटू 2.5 बाय 4.5 जितना प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए। जिसमें से कितना का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है? जिसमें से कितना का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है? फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकेंड ईयर में 1,60,000, 2,40,000 का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है। तो और कितना का प्रोविजन क्रिएट करना बाकी है? देखो, और कितना का प्रोविजन क्रिएट करना बाकी है?
नेगेटिव में आंसर आ रहा है, यस और नो? नेगेटिव में आंसर आ रहा है? आ रहा है तो आने दो। नेगेटिव में आंसर आ रहा है -40,000। -40,000 का प्रोविजन क्रिएट करना बाकी है, यानी हम लोगों ने एक्सेस प्रोविजन क्रिएट कर दिया होगा ना। प्रोविजन जो क्रिएट करना है वो नेगेटिव में आ रहा है। प्रोविजन जो क्रिएट करना है वो अगर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब एक्सेस प्रोविजन क्रिएट हो गया। और लॉजिकली सोचो भी, पिछला जो 1.5 साल है उसमें अपने लोग 8,000 ऑप्शंस के अनुसार प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे। पिछला जो 1.5 साल है उसमें अपने 8,000 ऑप्शंस के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे। अभी 31 मार्च 2003 से पहले 4,000 ऑप्शंस अनवेस्ट होके लैप्स हो गया। तो 31 मार्च 2003 ऑनवर्ड्स अपने को 4,000 ऑप्शंस के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। तो ठीक आधा आ गया प्रोविजन, सॉरी ठीक आधा आ गया ऑप्शंस, ठीक आधा आ गया ना ऑप्शंस। इसका मतलब पहले जो प्रोविजन क्रिएट किया था 8,000 के हिसाब से, वो एक्सेस में क्रिएट हो गया है। अभी अपने को उतना प्रोविजन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज 4,000 ऑप्शंस अनवेस्ट होके लैप्स हो गए, बाकी बचे 4,000 ऑप्शंस। तो बाकी 4,000 ऑप्शंस के लिए प्रोविजन क्रिएट करना होगा। तो पहले जो क्रिएट किए थे वो ज्यादा क्रिएट किए थे, अभी उसको क्या करना है? रिवर्स करना है। आई बात समझ में? अभी उसको क्या करना है? रिवर्स करना है। आप खुद ही सोचो, जो प्रोविजन क्रिएट करना है उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। जो प्रोविजन क्रिएट करना उसका आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है, यानी एक्सेस प्रोविजन क्रिएट हो चुका है। तो एक्सेस प्रोविजन को अपने क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवर्स करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईसो अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या टू जनरल रिजर्व, या टू जनरल रिजर्व। इशिका बेटा क्लियर यहां तक? एक बार यस या नो बोलो। चलो, देन 31 March 2004, देन 31 March 2004, यानी नेक्स्ट ईयर एंड डेट में फिर से प्रोविजन क्रिएट करना है। हमारा वेस्टिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 31 March 2005 को। उस समय तक तो प्रोविजन क्रिएट करते रहना है हर साल, थोड़ा थोड़ा करके। 31 March 2004 के एंड तक, 31 March 2004 के एंड तक हाउ मेनी प्रोविजंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? 4,000। इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन इज 90। कितना साल एक्सपायर हो चुका है? 3.5 साल आउट ऑफ 4.5, यानी 31 March 2004 के एंड तक, 31 March 2004 के एंड तक इन टोटल में 4,000 इंटू 90 इंटू 3.5 बाई 4.5 जितना प्रोविजन क्रिएट कर लेना है। जिसमें से कितना का प्रोविजन क्रिएट कर चुके हैं? फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकेंड ईयर में 1,60,000 एंड थर्ड ईयर में 40 का प्रोविजन रिवर्स किए थे। एंड थर्ड ईयर में 40 का प्रोविजन रिवर्स किए थे, तो 40 अपने माइनस कर दिए। आई बात समझ में?
40 अपने माइनस कर दे, बिकॉज 40 का प्रोविजन तो रिवर्स किए थे, तो 40 माइनस में होगा। तो और कितना का प्रोविजन क्रिएट करना बाकी है? 80,000। इसको फिर अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। वेस्टिंग पीरियड का आखिरी ईयर एंड 31 मार्च 2005। ये वेस्टिंग पीरियड का आखिरी ईयर एंड है। इस साल अपने प्रोविजन क्रिएट करेंगे, बताना हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड? 4,000। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन? 90। हाउ मच टाइम हैज एक्सपायर्ड? 4 out of 4.5। 4 out of 4.5 years have expired। यानी 31 मार्च 2005 के एंड तक इन टोटल में 4,000 इंटू 90 इंटू 4.5 बाई 4.5 जितना प्रोविजन क्रिएट कर लेना है। यानी 4,000 ऑप्शंस के लिए 90 के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट कर लेना है। 4,000 ऑप्शंस के लिए 90 पर ऑप्शन के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट कर लेना है। इन टोटल में 4,000 इंटू 90 जितना प्रोविजन क्रिएट कर लेना है इन टोटल में, जिसमें से फर्स्ट ईयर में अपने 80,000 का प्रोविजन क्रिएट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में 1,60,000 का प्रोविजन क्रिएट हो चुका था, एंड थर्ड ईयर में 40,000 का प्रोविजन रिवर्स किए, फोर्थ ईयर में 80,000 का प्रोविजन और क्रिएट किए अपने। तो कितना का प्रोविजन और क्रिएट करना बाकी है बोलो? 80,000 का प्रोविजन और क्रिएट करना बाकी है। इस तरीके से ईसो अकाउंट में 4,000 ऑप्शंस के लिए 90 पर ऑप्शन के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शंस अब एक्सरसाइज होना चालू होगा। वेस्टिंग पीरियड खत्म, वेस्टिंग डेट आ चुका है, एक्सरसाइज डेट आ चुका है। अब यहां से ऑप्शंस एक्सरसाइज होना चालू होगा। 4,000 ऑप्शंस वेस्ट हुए हैं, जिसमें से 3,000 ऑप्शंस जिसमें से 3,000 ऑप्शंस 30 सितंबर 2005 को एक्सरसाइज हुआ, जिसमें से 3,000 ऑप्शंस 30 सितंबर 2005 को एक्सरसाइज हुआ। 3,000 ऑप्शंस किस एक्सरसाइज हुआ? कितना एक्सरसाइज प्राइस है? 3,000 ऑप्शंस को एम्प्लॉयज लोगों ने 80 रुपीज पर ऑप्शन पे करके एक्सरसाइज किया। 3,000 ऑप्शंस को एम्प्लॉयज लोगों ने 80 रुपीज पे करके एक्सरसाइज किया। राइट, इसको अपने क्या करेंगे, ईसो अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसको अपने क्या करेंगे, ईसो अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। यानी ईसो अकाउंट में अब कितना का बैलेंस आ गया?
₹90 पर ऑप्शन का तो प्रोविजन क्रिएट किए थे, ₹80 पर ऑप्शन एम्प्लॉयज लोगों से रिसीव कर लिए, एक्सरसाइज प्राइस ₹80 का एम्प्लॉयज लोगों से रिसीव कर लिए, यानी ईसो अकाउंट में कितना का बैलेंस आ गया, 90 + 80 = 170, जो कि मार्केट प्राइस ही तो है। और 170 पर ऑप्शन आ गया, और 170 को अपने यूटिलाइज करेंगे इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए। कितना इक्विटी शेयर्स इशू करना है, 3000 इक्विटी शेयर्स इशू करना है। ईसो अकाउंट में से 170 का बैलेंस निकालेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए। सो ईसो अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 170, इसको यूटिलाइज कर इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट में 3000 इंटू 10, बिकॉज मैक्सिमम फेस वैल्यू जितना हो सकता है क्रेडिट शेयर कैपिटल में, एंड देन 3000 इंटू देन बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 170 माइनस 10 यानी 160, ये एसपीआर में जाएगा। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 170 माइनस 10, 160 पर ऑप्शन एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद क्या देख रहे अपने, 1000 ऑप्शंस लैप्स कर गए, 1000 ऑप्शंस लैप्स कर गए, तो उसके लिए जो प्रोविजन क्रिएट करके रखे थे वो बेकार हो गया। तो प्रोविजन अकाउंट को अपने क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करने के लिए क्या एंट्री पास कर रहे हैं, ईसो अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, इसका पैसा जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अपने डालेंगे। कितना ऑप्शंस लैप्स हो रहा है, 1000 ऑप्शंस लैप्स हो रहा है। प्रोविजन कितना के हिसाब से क्रिएट किए थे, 90 के हिसाब से क्रिएट किए थे। सो 1000 इंटू 90, 90,000 जितना प्रोविजन अपने रिवर्स कर रहे हैं। डन। So with this, we come to an end of the chapter, employer stock option plan. With this, we come to an end of the chapter, employer stock option plan. The next chapter that we are going to start with is underwriting of shares and corporate accounting. Corporate accounting में जो next chapter अपने start करेंगे, that is underwriting of shares. आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आज का क्लास सभी को समझ में आया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।